Hi everyone, welcome all of you. Today I am going to describe Poynting vector and flow of energy. So, Poynting vector is a vector that describes flow of energy in terms of electric and magnetic properties from any surface. And it is introduced by John Henry Poynting in 1884. John Henry Poynting also worked under Maxwell during his research. And as you all know, Maxwell is a scientist that introduced and explained the properties of light. He is the first to say light has electromagnetic nature and that has transverse vibration. He also calculated velocity of light. So John Henry Poynting also worked under Maxwell and he explained Poynting vector. And Poynting vector has different type of applications. If you want to measure how much energy generated through a tower, through an antenna, that can be measured in terms of Poynting vector. And Poynting vector is described as a cross product of electric and magnetic field S equal to E cross H. It has unit Weber per meter square, power per area. So you can measure the flow of energy by using the Poynting vector. What type of applications Poynting vector has? First, we are discuss about the flow of energy. From any tower, how much electromagnetic radiation is propagated, flow, that can be measured by using Poynting vector. Second application is right now we are all using wireless charging system. So if you want to design wireless charging antennas, you can use Poynting vector. As you all know, not only mobile phones, in smartwatch, in cars, in different types of electronic devices, we need wireless charging systems. So wireless charging systems can be designed by using Poynting vector. And third application, if you want to measure the radiation, how much energy is generated from sun, moon, and different types of systems, that can be measured by using Poynting vector. So in astrophysics, we also use Poynting vector. So it has different type of application. Now we are going to calculate flow of energy. If electromagnetic waves propagate in a medium, then there is a transfer of energy from source to a receiver, and that transfer of energy can be measured in terms of electric and magnetic vectors. So if you want to measure transfer of energy, flow of energy, we have to use Maxwell's equation. By using Maxwell equation, we can determine flow of energy. So from Maxwell fourth equation, what we can write? From Maxwell fourth equation, we can write it del cross H equal to J plus del D upon del T. This is the Maxwell fourth equation. By using this Maxwell fourth equation, we can calculate flow of energy. So इस इक्वेशन को हम रीराइट करेंगे और फ्लो ऑफ एनर्जी मेजर करेंगे. इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं J इक्वल टू डेल क्रॉस H माइनस डेल D अपॉन डेल T. ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया? रीराइट कर दिया. नाउ बाय मल्टीप्लाइंग विद इलेक्ट्रिक फील्ड डाइवर्जेंस. नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ इक्वेशन 2 by multiplying by divergence of electric field E dot, what you will get? E dot J equal to E dot del cross H minus E dot del D upon del T. क्या किया हमने यहाँ पे? इक्वेशन को रीराइट किया और ई डॉट से मल्टीप्लाई कर दिया. ये जो टर्म आ रही है ए डॉट बी क्रॉस सी, वेक्टर आइडेंटिटी यूज करके इस टर्म को हमें एक्सपांड करना है. कैसे एक्सपांड करेंगे? ए डॉट बी क्रॉस सी को हम लिख सकते हैं सी डॉट बी क्रॉस ए माइनस बी डॉट
ए क्रॉस सी। इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं बाय यूजिंग वेक्टर आइडेंटिटी। हम इसको एक्सपांड कर सकते हैं, इस टर्म को एक्सपांड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं E डॉट J इक्वल टू, क्या कर रहे हैं, इसको एक्सपांड कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे इसको, H डॉट डेल क्रॉस E माइनस B डॉट A क्रॉस C डेल डॉट E क्रॉस H। ठीक है, इसको हमने क्या किया, वेक्टर आइडेंटिटी से एक्सपांड कर दिया, माइनस E डॉट डेल D अपॉन डेल T। एक इक्वेशन हमारे पास आ गई एक्सपांड होके E डॉट J की टर्म में। अब हम क्या करेंगे, यहां पे जो डेल डॉट E है, बाय यूजिंग मैक्सवेल इक्वेशन व्हाट वी कैन राइट, बाय यूजिंग Maxwell third equation, what we can write, del क्रॉस E, इसको हम लिख सकते हैं माइनस dB अपॉन dt। इसी इक्वेशन नंबर 3, इसी इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इसको हम लिखते हैं माइनस dB अपॉन dt। क्या हो जाएगा, E डॉट J इक्वल टू H डॉट माइनस dB अपॉन dt माइनस डेल डॉट E क्रॉस H, इसको इस चीज रखना है, माइनस E डॉट डेल D अपॉन डेल T। ओके, सो हमने क्या किया, जो इक्वेशन थी मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन, उसको रिराइट किया, एक्सपांड किया, और फिर उसमें मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन से हमने डेल क्रॉस E की वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पे जहां पे भी आपका B आ रहा है उसको हम लिखेंगे म्यू H, और जहां पे D आ रहा है उसको हम लिखेंगे एप्सिलॉन E। ठीक है, ये वैल्यू हम पुट करेंगे ताकि हमारी जो इक्वेशन है वो H और E में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि पॉइंटिंग वेक्टर हम किस फॉर्म में निकाल रहे हैं, E और H की फॉर्म में। इसको हम कन्वर्ट देखते हैं क्या आएगा। क्या करना है हमें, जहां B आ रहा है वहां तो म्यू H लिखना है, जहां D आ रहा है वहां पे एप्सिलॉन E लिखना है। तो B, यहाँ पे B आ रहा है, यहाँ पे D आ रहा है, इनको हम कन्वर्ट करेंगे। E डॉट J इक्वल टू, पहली इक्वेशन जहां पे हमारा B आ रहा है, H तो बड़ा बाहर ही, B को म्यू H लिखोगे तो म्यू आपका बाहर आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस का म्यू H डॉट डेल H अपॉन डेल T। B को आपने क्या लिख दिया, म्यू H लिख दिया, तो म्यू बाहर आ गया, म्यू H डॉट डेल H अपॉन डेल T माइनस, इसको ऐसी चीज रखना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, E क्रॉस H। अब इस वाले इक्वेशन में माइनस E, यहां पे D को क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन E लिखेंगे, एप्सिलॉन हमारा बाहर आ जाएगा, E डॉट DE dt। ठीक है, इक्वेशन को हमने इस तरह से लिख दिया, पूरी ही इक्वेशन को हमने E और H की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब यहां पे देखो, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में ये दोनों जो वैल्यूज हैं इनको एक साथ कर देते हैं। E डॉट J इक्वल टू, इन दोनों वैल्यू को एक साथ लिख लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, म्यू H डॉट डेल H अपॉन डेल T प्लस एप्सिलॉन E डॉट DE अपॉन dt माइनस डेल डॉट E क्रॉस H। ठीक है, दोनों को हमने एक साथ कर दिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इसको हम एक अलग फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिख सकते हैं, अगर हम इसको इस तरह से लिखें, है ना, इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो म्यू H डॉट डेल H अपॉन डेल T, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, म्यू डिवाइडेड बाय 2 डेल बाय डेल T ऑफ H स्क्वायर, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको डिफरेंशिएट करो, H को क्या आएगा, 2H डेल H अपॉन डेल T, 2 से 2 कट जाएगा, वापस से क्या आ जाएगा आपका, म्यू H डेल H अपॉन डेल T। इसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, तो ये एनर्जी की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, E डॉट J इक्वल टू माइनस, क्या करेंगे इसको हम लिख देंगे म्यू बाय 2 डेल बाय डेल T ऑफ H स्क्वायर। सिमिलरली इसको क्या लिख सकते हैं,
प्लस एफ लाइन बाई 2 डेल बाई डेल टी ऑफ ई स्क्वायर माइनस में आपका ये तो है ही है ई क्रॉस एच। ठीक है, अब ये तीनों जो क्वांटिटी है इनका हम वॉल्यूम इंटीग्रल कर देते हैं। इन तीनों क्वांटिटी का क्या करते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल कर देते हैं। क्या हो जाएगा देखो, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ ई डॉट जे बाय टेकिंग वॉल्यूम इंटीग्रल। दोनों साइड में वॉल्यूम इंटीग्रल लेते हैं। वॉल्यूम इंटीग्रल लेने के बाद क्या आएगा देखो, ई डॉट जे डीवी इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल माइनस वॉल्यूम इंटीग्रल ले रहे हो आप म्यू बाय 2 डेल बाय डेल टी ऑफ एच स्क्वायर प्लस एफ लाइन बाय 2 डेल बाय डेल टी ऑफ ई स्क्वायर डीवी माइनस वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट ई क्रॉस एच डीवी। एक इक्वेशन हमारे पास आ गई वॉल्यूम इंटीग्रल लेने पे। अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस में, बाय यूजिंग नाउ वी कैन कन्वर्ट वॉल्यूम इंटीग्रल into surface इंटीग्रल। वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस में कन्वर्ट करते हैं कैसे, बाय यूजिंग स्टोक्स थ्योरम। बाय यूजिंग स्टोक्स थ्योरम। अब स्टोक्स थ्योरम क्या होती है आपकी, स्टोक्स थ्योरम होती है कि कोई भी अगर आपका वॉल्यूम इंटीग्रल है ना, कोई भी वॉल्यूम इंटीग्रल है डेल डॉट ए डीवी, उसको आप सरफेस में कन्वर्ट कर सकते हो, सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हो ए डॉट डीएस। वॉल्यूम इंटीग्रल को हम सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग स्टोक्स थ्योरम। तो ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम कन्वर्ट करेंगे वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, हमारे पास इक्वेशन आएगी वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ E dot J dV equal to minus volume integral of mu by 2 del by del t of h square plus f line by 2 del by del t of e square dV। और लास्ट वाले इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, वॉल्यूम को सरफेस में, तो माइनस surface integral of E cross H dot ds. This is called Poynting vector and this equation is known as flow of energy. ये जो इक्वेशन आ रही है, लास्ट इक्वेशन जो आ रही है, this is known as flow of energy. This equation is known as flow of energy. This equation is known as flow of energy. तो लास्ट इक्वेशन हमारी यही है, पूरा डेरिवेशन करने के बाद उसको हम बोलते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी। टोटल कितनी एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है। सो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट फ्लो ऑफ एनर्जी एंड इन दिस इक्वेशन द फर्स्ट टर्म, ये जो फर्स्ट टर्म है इट इज रिप्रेजेंट टोटल पावर ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनी रिसोर्स that represented by first instantaneous power dissipated। कितना पावर डिसिपेट हो रहा है उसको हम E dot J dV इससे हम मेजर कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म के थ्रू हम मेजर कर सकते हैं। सेकंड टर्म जो है विद नेगेटिव टाइम डेरिवेटिव दिस एक्सप्लेन द स्टोर्ड एनर्जी, कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है एंड जो स्टोर्ड एनर्जी है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर दैट रिप्रेजेंट बाय सेकंड टर्म। एंड ये जो एनर्जी है दैट इज ये धीरे धीरे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। नेगेटिव साइन एक्सप्लेन करता है कि ये जो स्टोर्ड एनर्जी है इट इज डिक्रीजिंग। एंड थर्ड टर्म रिप्रेजेंट फ्लो ऑफ एनर्जी, पॉइंटिंग वेक्टर। कि फ्लो ऑफ एनर्जी कैसा है, पॉइंटिंग वेक्टर को डिस्क्राइब करती है दैट टर्म। एंड दिस एंटायर डेरिवेशन इज नोन एज फ्लो ऑफ एनर्जी। और ये जो आपका प्रोडक्ट है दिस इज कॉल्ड पॉइंटिंग वेक्टर E क्रॉस H।
It is known as Poynting vector flow of energy. Thank you so much.